اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق 19 بھی آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ دوم گرامر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم فاعل مفعول فعل میں ابدا، کفرا، ضربا، ظلما، سامعا، عالما، عاملہ جو ہے ان کی دہرائی کریں گے۔ یہ دہرائی ہم ٹی پی آئی کے ساتھ کریں گے۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں کو اور حصوں کو استعمال کریں اور کسی کو اپنے ساتھ ساتھی بنائیں۔ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہمیں معلوم ہے، اسم، فعل اور حرف۔ اور فعل کی 3 قسمیں بھی ہم جانتے ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ اور فعل سے یا فاعل لام سے ہم نے فاعل، مفعول، فعل بنانا سیکھ لیا تھا۔ یعنی فعل سے کیا بنتا ہے؟ فاعل، کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا یا کام کا نام۔ آج ہم کچھ مزید افعال جو ہیں لیں گے، مثلا ذکرہ، ذکرہ اس نے یاد کیا، اس سے کیا ہوگا؟ ذاکرن، یاد کرنے والا، مذکورن جس کو یاد کیا گیا، ذکر یاد کرنا۔ جی کون دہرائے گا؟ یس افرا آپ دہرا دیجئے پلیز۔ ذاکر یاد کرنے والا، مذکور جس کو یاد کیا گیا، ذکر یاد کرنا۔ اب اس کے سوال جواب ہیں، دیکھیے حل انت ذاکر، تو جواب کیا ہوگا؟ نام انا ذاکر، یعنی انت کا جواب انا سے ہوگا۔ حل انتم ذاکرون، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نام نحن ذاکرون، انتم کو ذاکرون سے جواب دیتے ہیں۔ اگلا ٹیبل ہے عابد، عابدن عبادت کرنے والا، معبودن جس کی عبادت کی گئی، عبادت جس کی عبادت کرنا۔ جی حرین شاہ پلیز آپ دہرا دیجیے سے۔ عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی، عبادت کرنا۔ گڈ، اب اس کا مکالمہ دیکھتے ہیں۔ حل انت عابد، تو جواب کیا ہوگا؟ نام انا عابد، یعنی انت کا جواب انا سے ہوگا۔ عابد حل انتم عابدون، تو کیا جواب ہوگا؟ نام نحن عابدون، جی ہاں آپ عبادت کرنے والے۔ حل ذکر عبادت، کیا ذکر جو عبادت ہے تو نام ذکر العبادت، یہی سوال کا جواب ہے۔ اگلا ٹیبل ہمارے پاس ہے داربن مارنے والا، مضروبن جس کو مارا گیا، ضرب مارنا۔ جی علیزہ آپ جو ہے نا پلیز دہرا دیجئے۔ ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا۔ ویری گڈ، اس کے سوال جواب لیتے ہیں۔ حل ہوا دارب، تو اس کا جواب ہوا کا ہوا ہی ہوتا ہے، تو لہذا نام ہوا دارب۔ حل ہم داربون، کیا وہ سب مارنے والے؟ نام ہم داربون، ہم کا جواب ہم سے ہوتا ہے۔ اگلا ٹیبل ہمارے پاس ہے سامع، سامعن سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سمع سننا۔ جی ہاں عرفا آپ دہرا دیجئے پلیز۔ سامع سننے والا، مسموع جس کو سنا گیا، سامع سننا۔ ویری گڈ، اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں۔ حل انت سامع، انت کا جواب آنا سے ہوتا ہے، تو کیا ہوگا؟ نام آنا سامع، ہاں میں سننے ہوں۔ حل انتم سامعون، کیا آپ سب سننے والے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نام نحن سامعون، ہاں ہم سننے والے۔ اگلا ٹیبل ہے عالم، عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا۔ جی علیزہ کاشف آپ دہرا دیجیے سے۔ عالم جاننے والا، معلوم جس کو جانا گیا، علم جاننا۔ ویری گڈ، تو اس کے بعد ہے عامل، عامل کہتے ہیں عمل کرنے والا، عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل کرنا۔ جی عرفا آپ دہرا دیجیے۔
عامل عمل کرنے والا، معمول جس پر عمل کیا گیا، عمل کرنا. ویری گڈ. تو اب ہم مؤنث کے سیرے سیکھتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہوا فعلا، اس نے کیا، تو اس کا مؤنث کیا ہوا؟ یا فعلت، اس مؤنث نے کیا. ہوا یفعلو، وہ کرتا ہے یا کرے گا. ہیا تفعلو، وہ کرتی ہے یا کرے گی. تو آئیے اس کے مشق کرتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں ہوا فعلا، ہیا فعلت، اور اس کا مضارع کیا ہوگا؟ ہوا یفعلو، ہیا تفعلو. آئیے اس کا ٹیبل دیکھتے ہیں. مثلا فتح سے کیا ہوگا؟ ہوا فتح، ہیا فتحت. ہوا نصرہ، ہیا نصرت. ہوا ضربہ، ہیا ضربت. ہوا سمعہ، ہوا سمعہ، ہیا سمعت. یہ تھے ماضی کے سیرے. اب ان کو کوئی ایک بار دہرا دے، پھر آگے ہم مضارع کی طرف چلتے ہیں. جی ایلیزی، آپ جو ہے یہ ماضی کے سیرے دہرائیے ہوا اور ہیا کے ساتھ. ہوا فتح، ہیا فتحت. ہوا نصر، ہیا نصرت. ہوا ضرب، ہیا ضربت. ہوا سمع، ہیا سمعت. اب اس کا مضارع لیتے ہیں. دیکھیے مضارع میں کیا ہوگا؟ ہوا یفتح، ہیا تفتح. ہوا ینصر، ہیا تنصر. ہوا یضرب، ہیا تضرب. ہوا یسمع، ہیا تسمع. ہاں جی شاہدہ عرفان آپ کر دیجئے. ہوا یفتح، ہوا ینصر، ہوا یضرب، ہوا یسمع. ہیا تفتح، ہیا تنصر، ہیا تضرب، ہیا تسمع. جی نیاز بہادر آپ دہرا دیجئے پلیز اسے. ہوا یفتح، ہوا ینصر، ہوا یضرب، ہوا یسمع. ہی تفتح، ہی تنصر، ہی تضرب، ہی تسمع. اوکے میں آپ سب کے لیے ایک بار پورا ٹیبل دہرا دیتا ہوں. ہوا فتح، ہیا فتحت. ہوا نصر، ہیا نصرت. ہوا ضرب، ہیا ضربت. ہوا سمع، ہیا سمعت. ہوا یفتح، ہیا تفتح. ہوا ینصر، ہیا تنصر. ہوا یضرب، ہیا تضرب. ہوا یسمع، ہیا تسمع. آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس یہ ماضی کا ٹیبل ہے. فعلا اس نے کیا، فعلو ہم سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس مؤنث نے کیا. اس کا مضارع کا ٹیبل تھا یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعلو وہ مؤنث کرتی ہے. اس کا امر نہیں کیا تھا؟ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. اس کا فاعل مفعول کیا تھا؟ فاعل کرنے والا، مفعول جس پہ اثر پڑا فعل کرنا. اب آپ میں سے کون اسے دہرائے گا؟ جی اوپر سے شروع کرتے ہیں. افرا پلیز آپ یہ دہرا دیجیے. عربی کا اوکے عربی دہرا دیں، ترجمہ نہیں. جی سر. فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا، فعلت، فعلت. يفعل، يفعلون، تفعلوا، أفعلوا، تفعلون، نفعل، تفعل. افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا، فاعل، مفعول، فعل. گڈ. آئیے اس کی 6 چابیاں لیتے ہیں. یہ دیکھیں 3 افعال کی چابیاں اس کی کیا بنیں گی؟ فعلا، یفعلو، افعل یہ فعل کو. اور 3 اسماء کی اس کی چابیاں کیا بنیں گی؟ فاعل، مفعول، فعل. فاعل، مفعول، فعل. جی علیزہ آپ یہ 6 چابیاں دہرا دیجئے. فعل، يفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل. ویری گڈ. اب اگلا ٹیبل ہم لیتے ہیں. اگلا ہے فتح کا. اس کا ماضی ہے فتح، اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا آپ سب نے کھولا. فتحت اس مؤنث نے کھولا.
اس کا مضارع جو ہے کیا آئے گا؟ یفتہو وہ کھولتا ہے، یفتہون وہ سب کھولتے ہیں، تفتہو آپ کھولتے ہیں، افتہو میں کھولتا ہوں، تفتہون آپ سب کھولتے ہیں، نفتہو ہم کھولتے ہیں۔ تفتہو وہ مؤنث کھولتی ہے۔ امر نہیں کیا ہوگا؟ افتح کھول، افتہو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتہو مت کھولو۔ اور فاعل مفعول کیا ہوں گے؟ فاتح ان فتح کرنے والا، کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا۔ جی ابھی کس نے کرنا؟ جی شاہدہ عرفان، شاہدہ عرفان آپ اس کا عربی کا سارا دہرا دیجیے ترجمہ کیے بغیر۔ فتحوا فتحت فتحتم فتحتم فتحنا فتحت يفتحوا يفتحون تفتحوا أفتحوا تفتحون نفتحوا تفتحوا افتح لا تفتح لا تفتحوا فاتح مفتوح فتح۔ گڈ، اب آئیے اس کی 6 چابیاں لیتے ہیں۔ 3 افعال کی کیا ہوں گا؟ فتح یفتح افتح، فتح یفتح افتح۔ اور اسما کی 3 چابیاں اس کی کیا بنیں گی؟ فاتح مفتوح فتح۔ ہاں جی اسے کون دہرائے گا؟ جی نیاز بہادر آپ یہ 6 چابیاں دہرا دیجیے۔ فتح يفتح افتح، فاتح مفتوح فتح۔ اوکے، اب اگلا ٹیبل ہم لیتے ہیں، وہ ہے نصرہ کا۔ نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ نصرت اس مؤنث نے مدد کی، اس عورت نے مدد کی۔ اس کا مضارع کا ٹیبل کیا آتا ہے؟ ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے، انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ تنصرو وہ عورت مدد کرتی ہے یا وہ مؤنث مدد کرتی ہے۔ امر و نہی اس کے کیا ہوں گے؟ انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد۔ فاعل مفعول کیا ہوں گے؟ ناصر مدد کرنے والا، منصور ان جس کی مدد کی، نصر مدد کرنا۔ جی محمد ایان آپ بغیر ترجمے کے یہ پورا ٹیبل کر دیجئے۔ نصرا نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا نصرت ینصرو ینصرونا تنصرو انصرو تنصرونا ننصرو تنصرو انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو لا ناصر منصور نصر۔ ویری گڈ، یہ اس کی 6 چابیاں لیتے ہیں۔ 3 افعال کی چابیاں اس کی کیا بنیں گی؟ نصرا ینصرو انصر۔ اور جبکہ اس کی اسماء کی 3 چابیاں کیا بنیں گی؟ ناصر منصور نصر۔ ہاں جی دانیال پلیز آپ یہ 6 چابیاں دہرا دیجئے۔ نصرہ ینصرو انصرو ناصر منصور نصر، ویری گڈ۔ اگلا ٹیبل ہم لیتے ہیں دربا کا ہے۔ اس کا ماضی ہے دربا اس نے مارا، دربو ان سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا، دربت اس مؤنث یا اس عورت نے مارا۔ اس کا مضارع کا ٹیبل کیا آئے گا؟ یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ سب مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم سب مارتے ہیں، تضربو وہ مؤنث یا عورت مارتی ہے۔ امر و نہی اس کا کیا ہوگا؟ اضرب مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مار، لا تضربو مت مار۔ اور فاعل مفعول کیا ہوں گے؟ ضاربن مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا، ضرب مارنا۔ ہاں جی کون ابھی کرائے گا؟ حسین شاہ پلیز آپ بغیر ترجمے کے پورا ٹیبل کیجیے۔ ضربا ضربو ضربتا ضربتو ضربتم ضربنا ضربت یضربو یضربونا تضربو اضربو تضربونا نضربو تضربو اضرب اضربو لا تضرب لا تضربو ضاربن مضروبن ضربن۔ گڈ، آئیے اس کی 6 چابیاں لیتے ہیں۔ 3 افعال کی چابیاں اس کی کیا ہوں گی؟ دربا یضربو اضرب۔ اور اسماء کی 3 چابیاں اس کی کیا ہوں گی؟ ضاربن مضروبن ضرب۔ ہاں جی پلیز آپ یہ 6 چابیاں دہرا دیجئے۔
ضربا یضربو اضرب ضارب مضروب ضرب ضرب. تو ضرب. آئیے اگلا ٹیبل لیتے ہیں. سامع کا ہے, اس کا ماضی ہوگا سامعہ, اس نے سنا, سامعو سب نے سنا, سمیتا آپ نے سنا, سمیتو میں نے سنا, سمیتم آپ سب نے سنا, سمینا ہم سب نے سنا. سامعت اس مؤنث یا عورت نے سنا. اس کا مضارع کا ٹیبل کیا بنے گا؟ یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا, یسمعونا وہ سنتے ہیں یا سنیں گے, تسمعو آپ سنتے ہیں یا سنیں گے, اسمعو میں سنتا ہوں یا سنوں گا, تسمعونا آپ سب سنتے ہیں یا سنیں گے, نسمعو ہم سنتے ہیں یا سنیں گے, تسمعو وہ سنتی ہے یا سنے گی. امر نہیں کیا ہوگا؟ اسمع سن, اسمعو سنو, لا تسمع مت سن, لا تسمعو مت سنو. فاعل مفعول کیا ہوں گے؟ سامعون سننے والا, مسموع جس کو سنا گیا, سماع سننا. جی علیزہ پلیز آپ بغیر ترجمے کے دہرا دیجیے. سمع سمعوا سمعت سمعت سمعتم سمعنا سمعت سمعت. اسمعوا يسمعون تسمعوا اسمعوا تسمعون نسمعوا تسمعوا. اسمع اسمعوا لا تسمعوا سامع مسمعوا سمع. آئیے اس کی 6 چابیاں دیکھتے ہیں. 3 افعال کی کیا ہوں گی؟ سامع, یسمع, اسم. اور افعال کے بعد 3 اسماء کی کیا ہوں گی؟ سامع, مسموع, سمع. ہاں جی اب کس کی باری ہے؟ دانیال پلیز آپ یہ 6 چابیاں دہرائیے. جی دانیال انمیوٹ کیجئے. اوکے وہ نہیں کر پا رہے. حورین شاہ پلیز آپ کرا دیجئے. سمع يسمع اسمعوا سامع مسموع سمع. گڈ. آئیے اگلا ٹیبل لیتے ہیں. اگلا ٹیبل یہ ابدا کا ہے. یہ دیکھیں ابدا, عابد, معبود, عبادہ. اب میں یہ چاہتا ہوں یہ جو عابد ہے اس کی جمع بناؤں. تو ہم نے جمع بنانے کے لیے کیا دیکھا تھا؟ واو نون اور یا نون لگاتے ہیں. جیسے مسلمون سے تکا مسلمون اور مسلمین. تو عابد سے کیا ہوگا بھائی؟ جی عابد کی جمع کیا ہوگی؟ واو نون لگائیں گے عابدون اور یا نون لگائیں گے عابد. اب یہ معبود جو ہے اس کی بھی ہم جمع بنانا چاہتے ہیں. تو معبود کی کیا ہوگا؟ واو نون لگا کے معبودون اور یا نون سے معبد. آئیے اگلا ٹیبل ہے طلبہ, داربن, مضروبن, در. میں چاہتا ہوں کہ یہ دارب جو ہے اس کی جمع بناؤ. آئیے دارب کی جمع کیا ہوگی؟ واو نون سے داربون اور یا نون سے داربی. اور مضروب کی کیا ہوگی جمع؟ واو نون سے مضروبون اور یا نون سے مضروب. آگے ہے سامعہ کا ٹیبل. سامعہ سے سامعون, مسموع اور سامع. اب میں چاہتا ہوں یہ جو سامع ہے اس کی جمع بناؤ. واو نون اور یا نون سے بنا کے دیں مجھے بھائی. اور مجھے لگیں گے سامعون اور یا نون لگائیں گے سامع. میں کہتا ہوں مسموع جو ہے اس کی بھی جمع بناتے ہیں. واو نون اور یا نون سے بنائیں. مسموع واو نون لگ گیا, یا نون لگا, مسموعین. اچھا عالم ہے, اس سے بنے گا عالم, معلوم, علم. اب میں چاہتا ہوں یہ عالم جو صاحب ہے ان کی جمع بنائیں. واو نون اور یا نون سے بنائیے. عالم سے کیا ہوگا؟ عالمین. معلوم کی کیا ہوگا؟ معلوم کی معلومون, معلمین. اگلا ہے عاملہ. عاملہ سے کیا ہوتا ہے؟ عامل, معمول. ویری گڈ. عاملون, عاملین اور معمولون. تو آئیے سوالوں کے جواب دیجیے. اس کی اردو بنائے, جملے کی اردو بنائے. علمھا عند ربی, علمھا اس کا علم, عند پاس ہے, ربی میرے رب کے, اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور نانو ہم ہوں گے, لہو اس کے لیے, عابدون عبادت کرنے والے. کیا ترجمہ ہوگا؟ اور ہم سب اس کی عبادت کرنے والے ہیں. وَذَاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا, واقع میں نہیں ہوتا ہے ذاکرون, ذاکر کی جمع ہے, اللہ, اللہ کا کثیر زیادہ. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اور ذکر کرنے والے اللہ کا بہت زیادہ. اب عربی بنانی ہے. ہم سب سنتے ہیں, ہم سب سنتے ہیں. نحن سامعون, اللہ جاننے والا ہے. ہاں جی اللہ عالم. دعا سنی ہوئی ہے. الدعاء مسموع.
تو یہ سوالوں کے جواب بھی ہو گئے. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. آج تو Assalamu alaikum, brother. Is my voice clear? Is my voice clear to you? You have muted me. Make me co-host, please. Your audio video is clear. Please make me co-host, otherwise I will be unable to cover. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمدللہ آج چیپٹر 20 کے لیے ہم سب یہاں موجود ہیں. بہت ہی مبارک دن ہے اور الحمدللہ کورس سمجھنے کا جو کورس ہے قرآن سمجھنے کا اس کی تکمیل کا دن ہے. بردر میں نے ریکارڈنگ پاز کی ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. Sister, make me co-host. I am not. Okay, fine. Now it's fine. Okay, thank you. Jazakallah. اوکے الحمدللہ ہم نے جو سفر شروع کیا تھا قرآن سمجھنے کا آسان طریقے سے وہ آج تکمیل کو پہنچ رہا ہے. 19 چیپٹرز ہم اس کورس کے بہت اچھے طریقے سے مکمل کر چکے ہیں. آج آخری سبق ہے سبق نمبر 20 لیسن 20 چیپٹر 20. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. الحمدللہ تو سب سے شروع میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا. ڈیفینیٹلی یہ اللہ کی سلیکشن ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں اتنے لوگ ہیں جو اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کاموں کو چھوڑا اللہ کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنا وقت دیا اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے. تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ بہت مبارک ہیں. اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے, اللہ کے پسندیدہ ہیں. تو اس پسندیدگی پر اللہ کی رضا حاصل ہونے پر آپ سب کو بہت مبارکباد. آج بہت ہی خاص دن ہے, بہت ہی خاص چیپٹر ہے جو ہم اسٹڈی کرنے والے ہیں اور آج کے چیپٹر میں آپ کی اٹینشن انٹینشنلی بہت ضروری ہے. پوری توجہ سے آپ کلاس میں رہیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم کیا کیا چیزیں سمجھنے والے ہیں, کیا کیا چیزیں آج ہم کیا کیا چیلنجز تھے جو آج ہم ثابت کریں گے. اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ گرامر سے صرف صغیر اور نکات تعلیم یا شوق کی بات ہوگی. سب چیزیں سمجھاتی ہوں کہ کیا ہے لیکن آہستہ آہستہ. الحمدللہ سب سے پہلے اللہ ہی اس کے مستحق ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے, اللہ کی تعریفیں کی جائیں. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی, ہمیں چوز کیا اور یہ اپرچونٹی ہم تک پہنچی اور ہم نے اس کو اویل کیا. آج چیپٹر 19 مکمل ہونے تک ہم 232 ورڈز کو سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں 41,111 ٹائمز ریپیٹڈلی آئے ہیں.
अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो हमारा टारगेट था यानी 78,000 अप्रोक्सीमेटली कुरान के अल्फाज हैं, 78,000, ठीक है, उनमें से 41,111 अल्फाज याद होने का मतलब ये है कि हमें आधे से भी ज्यादा अल्फाज याद हो रहे हैं, 50% से भी कुछ ज्यादा अल्फाज हम समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल होगा कि कैसे पता चलेगा कि हमें कुरान इतना ज्यादा आ गया है। इस बात को आज हम इंशाल्लाह साबित करेंगे। और आज आखिरी चैप्टर में एक बार फिर हम ज़हन नशीन कर लेते हैं कि ये 7 होमवर्क बहुत जरूरी हैं। इवन कोर्स के बाद भी हमें कुरान को समझने का जो रास्ता है इसको छोड़ना नहीं, इसको दोहराते रहना है, रिवाइज करते रहना है, और हम उसको पुख्ता करने के लिए ये होमवर्क करते रहेंगे, पॉकेट बुक का इस्तेमाल भी करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि कोर्स हमारा मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह इस सबक में मैं आपको ये साबित करूंगी, अगर आप पूरी तवज्जो से यहाँ मौजूद हैं, कि वाकई हमने 50% अल्फाज सीखे हैं। बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल होगा कि हमने सीखा तो है, लेकिन कैसे पता चले कि 50% यानी आधी किताब कुरान के अल्फाज हमने सीखे हैं। तो आज इंशाल्लाह ये साबित होगा, लेकिन आपकी तवज्जो रिक्वायर्ड है, जरूरी है। चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि कुरान की जो शुरू की सूरत है, दूसरी सूरह सूरतुल बकरा, उसके कुछ आयात को लेते हैं और वहां से जानने की कोशिश करते हैं कि उनमें से हम एक्चुअली कितने लफ्ज सीख चुके हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, शैतान से जो मरदूद है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से जो बहुत ज्यादा रहम करने वाला और मुसलसल रहम करने वाला है। जी, तो अभी तो मैं आपको 5-6 सेकंड देती हूँ, आप जरा इसको देखें, गौर से देखें कि इनमें से कितने लफ्ज हैं जिनके मानी आपको आते हैं। जी, जरा सब अपनी अपनी जगह कि आपको कितने लफ्ज आते हैं। जी, राइट। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कई लफ्ज ढूंढे होंगे। अगर आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकें कोई एक लफ्ज, 2 लफ्ज, कितने लफ्ज आते हैं। एहसन माशाल्लाह पहले से बता सके, एहसन को 4 अल्फाज आते हैं इसमें से, माशाल्लाह। और कौन बता रहा है हमें? मैं वेट कर रही हूँ चैट बॉक्स में आपके रिप्लाई का। जी, अफरा बता रही है 3 अल्फाज आते हैं, सलमा भी कह रही है 3 आते हैं, नियाज बहादुर कह रहे हैं सब आते हैं। चले, नियाज बहादुर साहब ने जो है वो पहले से शायद कुरान को पढ़ा होगा, माशाल्लाह। अभी जो हम असेस कर रहे हैं ना, वो कुरान कोर्स 1 के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। मूसा भी कह रहे हैं कि 5 अल्फाज आते हैं, चले माशाल्लाह। अब हम देखते हैं एक्चुअली कितने अल्फाज हमें आते हैं। ये देखिए, जितने अल्फाज यहाँ रेड लाइन से लाइन लगाई हुई है, उसके नीचे अंडरलाइन किए हुए हैं, वो सारे लफ्ज हम कोर्स 1 में पढ़ चुके हैं। जालिका हमने पढ़ा था, ठीक है। अल किताबु पढ़ चुके हैं, ला का मतलब नहीं है, हम पढ़ चुके हैं। सी और ही, ये जो हु और ही 2 अल्फाज हमने पढ़े थे, हु भी होता है, ही भी होता है, ठीक है। सी ये भी पढ़ चुके हैं। हुदन हिदायत हम पढ़ चुके हैं। लाम जेर ली, लिल्लाही, ठीक है। ये तमाम अल्फाज हमने पढ़े हैं। कितनी बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। क्या रह गया? अलिफ लाम मीम हमें देखना है कि ये क्या है। रैबा नया लफ्ज है, मुत्तकीन, सुभान अल्लाह, सिर्फ ये रह गया, बाकी सब हमें पहले से आता है, ठीक है। ओके, तो देखिए ब्लू कलर में जो वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वो अल्फाज हैं जो हमने अब सीखने हैं, जो सीखने वाले बाकी हैं। अलिफ लाम मीम को हम अलिफ लाम मीम ही पढ़ते हैं। ये वो अल्फाज हैं जिनके मानी अल्लाह ताला जानते हैं, इसलिए इनका तर्जुमा यही किया जाता है, कोई और तर्जुमा नहीं किया जाता। रैबा का मतलब होता है शक, डाउट, ठीक है। मुत्तकीन, मुत्तकी लोग जो जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होता है और वो बुरे कामों से बचने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा, उन्हें कहते हैं मुत्तकी, ठीक है। तो हमने क्या समझा यहाँ? अलिफ लाम मीम ये किताब नहीं, शक इसमें, हिदायत है किनके लिए? मुत्तकियों के लिए, सुभान अल्लाह। अब आप देखिए कोर्स 1 के बाद हमारी ऐसी बेस बन गई है कि पूरे कुरान में हम जहां भी पढ़ेंगे हमें बहुत सारे वर्ड्स आते होंगे। तो अब हमें बाकायदा हमारे लिए कुरान को समझना आसान हो गया है। इसी तरह से सूरतुल बकरा की आयत नंबर 3 हमारे सामने है, जरा गौर से देखते हैं हम कि यहाँ कौन से वर्ड्स हमें आते हैं। आखिर में आपको नजर आ रहा है मिम्मा। मिम्मा एक्चुअली जब भी कुरान में आए याद रखें ये मिन और माँ को मिलकर बने, और आपको याद है कि मिन का मतलब हम पढ़ चुके हैं से, माँ की भी हमने 3 मानी पढ़े थे, ठीक है। तो मिम्मा इनको मिलाकर बना है, राइट। तो हम इसको भी डेफिनेटली कंसीडर करेंगे कि ये हमने पढ़ लिया हुआ है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो वर्ड रेड कलर के अंडरलाइंड हैं ये हमने पढ़े हुए हैं। अल्लादीना जो लोग, भी पर से बहुत सारे मानी है, वाह और अस्सलात नमाज, वाह और मिन से, माँ जो, हुम उन्हें, हु हम, राइट।
अल्हम्दुलिल्लाह। और जो वर्ड्स हमने अब नए ऐड करने हैं, जो सीखने वाले बाकी हैं, वो ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं, यानी युमिनूना ईमान लाते हैं, गैबी गैब पर, युकीमूना कायम करते हैं, रज़क़ना हमने रिज़्क दिया, युनफिकून वो खर्च करते हैं। सिर्फ चंद लफ्ज सीखने से हमें आयत कुरानी सूरतुल बकरा से नंबर 3 की समझ आ जाएगी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जो लोग ईमान लाते हैं गैब पर और कायम करते हैं नमाज, और जो रिज्क हमने दिया है उन्हें वो खर्च करते हैं, हमने जो रिज्क उन्हें दिया है वो उसे खर्च करते हैं। सुभान अल्लाह। तो कितना आसान हो गया कोर्स 1 के बाद इस आयत को समझना, क्योंकि सिर्फ चंद अल्फाज बाकी थे। इसी तरह आयत नंबर 4 को देखते हैं हम, ठीक है। अगर आप इस टाइम वाकई तवज्जो से सुन रहे हैं और मेरे साथ इस एक्टिविटी में शामिल हैं, क्योंकि आज की एक्टिविटी सिर्फ सुनने की नहीं है, आपको ए पार्ट में भी साथ साथ वो काम करने होंगे जो मैं बोलती हूँ, तभी आपको ये साबित होगा कि वाकई आपने 50% से ज्यादा अल्फाज सीखे, ठीक है। तो जो जो चीज मैं आपको कह रही हूँ आप ध्यान से देखिए और मेरे साथ तर्जुमा करें। ये देखिए, ये तमाम अल्फाज हैं आयत नंबर 4 के, और यहाँ पर मौजूद हैं अंडरलाइन वर्ड्स जो हमें पहले से आते हैं, ब्लू कलर में वो हैं जो हमने नए सीखे हैं, जो अभी हमने नहीं पढ़े, 1, 2, 3 और 4। सुभान अल्लाह। आयत नंबर 4 के सिर्फ 4 अल्फाज हमें अभी नहीं आते, बाकी सारे हमने पहले कोर्स 1 में सीख लिए हैं। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता यकीन होना यकीनन शुरू हो गया होगा कि हमारे लिए कुरान को सीखना कोर्स 1 की वजह से बहुत आसान हो गया, राइट। तो तर्जुमा क्या है? वल्लज़ीना, और जो लोग युमिनूना ईमान रखते हैं, बिमा उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ, वमा और जो उनजिला नाजिल किया गया, मिन क़ब्लिका आपसे पहले, वबिल आखिरती और आखिरत पर, हम वो लोग युकिनून यकीन रखते हैं। सुभान अल्लाह। और आयत नंबर 5 तक हमने पढ़ना था, ये आयत नंबर 5 है। उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, राइट। ऑब्वियसली इसमें से भी अल्फाज हैं जो हमने पहले से पढ़े हुए हैं। माशाअल्लाह, सिर्फ एक लफ्ज है जो हमने अभी सीखना है। बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको। मुझे यकीन है कि आप बहुत स्पेशल फील कर रहे हैं इस टाइम। आयत मुबारका, सिर्फ एक लफ्ज आयत मुबारका नंबर 5 का हमारे लिए नया है, बाकी सब हमें आते हैं। उलाइका वही लोग, हमने ये पढ़ा है, ठीक है। अला पर ये भी पढ़ा है हमने। हुदन हिदायत हम पढ़ चुके हैं। मिन का मतलब है से, रब रब हिम उनका, यानी रब हिम उनका रब, उनका अपना रब, ठीक है। व उलाइका, व और उलाइका वही लोग, ये देखें ये दो लफ्ज सेम है। और हम का मतलब फिर आ गया हम वो सब, यानी ठीक है, हम वो एक, हम वो सब, हु और हम ये दोनों है। और आखिरी लफ्ज जो नया है वो है अल-मुफ्लिहून, कामयाब। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमने इससे मिलता जुलता एक लफ्ज पढ़ा था अजान में, हय्या अलल फलाह। तो थोड़ी बहुत ही रिजेम्बलेंस तो हमें वहां से पता चल रही है कि ये वहीं से निकला है। फलाह का मतलब कामयाबी है, और मुफ्लिहून उनको कहते हैं उन लोगों को जो कामयाब होते हैं, जो कामयाबी हासिल करते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी खुशी की बात है, इतना आसान हो गया, एक लफ्ज सीखने से पूरी आयत समझ आ गई हमें। वही लोग हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, और वही लोग कामयाब हैं। कौन लोग? जिनके बारे में अभी हमने पिछली आयत में पढ़ा है। तो माशाल्लाह, मुझे यकीन है कि इस क्लास के बाद भी आप अपना कुरान पाक उठाएंगे, सूरतुल बकरा की पहली 5 आयत खोलेंगे, और आपको इसी तरह से आपको पता चल जाएगा कि वाकई हम ये कर सकते हैं जो मैं अभी आपको साबित कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, इसी तरह से हम आगे चलते हैं। आयतुल कुर्सी हम देखते हैं। आयतुल कुर्सी कुरान पाक की आयत मुबारक है, राइट। और देखते हैं कि वो हमें कितनी पहले से आ चुकी है, जबकि हमने कोर्स 1 में आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ी, लेकिन हमने बहुत से अल्फाज पढ़े हैं ऑलरेडी। तो जरा यहाँ पर भी मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, आप जरा चैट बॉक्स में बताएं कि कितने अल्फाज आपको पहले से आते हैं, जल्दी से। आई वांट टू सी कि आप वाकई मेरी एक्टिविटी में शामिल हैं आज लास्ट क्लास में। जी जल्दी जल्दी से मुझे बताएं। अप्रोक्सीमेट सदफ कह रही है कि फुल आते हैं, माशाल्लाह। अफरा भी कह रही है फुल आते हैं, ओके। सलमा भी कह रही है फुल 7 आते हैं, 8 आते हैं। अलीज़े बता रही है, ईमान, मूसा, इसरा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ओके दैट्स राइट। अब हम यहाँ पर देखते हैं और वाकई इस बात को साबित करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इतने अल्फाज जिनको रेड अंडरलाइन किया हुआ है वो कोर्स 1 में हमने सीखे हैं। अल्लाहु अल्लाह, ला नहीं, इलाहा इबादत के लायक यानी माबूद, इल्ला सिवाय, हम वो, राइट। उसके बाद 2 लफ्ज यहाँ पर नए हैं जो अल्लाह के सिफाती नाम है। अल हय्यू जिंदा है, अल कय्यूम थामने वाला,
ये दो हमारे लिए नए लफ्ज हैं, खूबसूरत नाम है अल्लाह के। ला नहीं, ताखुजुहु, ला का मतलब नहीं है, ताखुजु आती या आती है, हु उसे, कि हु का लफ्ज भी हमने पढ़ा हुआ है ना, हु हुम, राइट। सिनातुन ऊंग, ये हमारे लिए नया लफ्ज है। वला और ना, नौम नींद। नौम हमने कहाँ पढ़ा है कोर्स 1 में, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताएं, एक्टिवली आप रिप्लाई करें जल्दी जल्दी। नौम का लफ्ज हमने कुरान के किस चैप्टर में पढ़ा है? सदफ जबीन कह रही है अजान में, सुबह की अजान में इस तरह कह रही, माशाअल्लाह। और सिनातुन हमारे लिए नया लफ्ज है, ऊंग कहते हैं जब नींद आने की कैफियत होती है ना, हमें भी नींद आ रही होती है, हम जरा सुस्त हो जाते हैं, नींद आने की कैफियत, नींद के करीब, उसको कहते हैं ऊंग। तो सुभान अल्लाह, सिर्फ 4 नए लफ्ज हमने अभी सीखे और हमें पता चल गया कि आयत मुबारका जिसको हम हमेशा हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स बताते हैं और हमारे अच्छे फ्रेंड्स भी कि इसको जरूर तिलावत करना चाहिए, ये हिफाजत के लिए भी है। हमें पता चल गया कि एक्चुअली उसमें क्या खास बात कही जा रही है। उसमें कहा जा रहा है अल्लाह, अल्लाह ही है, नहीं माबूद सिवाय, यानी वो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ठीक है, सिंपली मैं आपको बताती हूँ मुहावरा तर्जुमा। वो कौन है? वो है जिंदा, हमेशा जिंदा रहने वाला, सबको थामने वाला, ना उसे ऊंग आती है और ना नींद। सुभान अल्लाह। अब हम आयतुल कुर्सी का अगला हिस्सा देखते हैं। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहू इल्ला बिइज़्नि। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपको खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है ना? ये देखें, सिर्फ 3 अल्फाज, बल्कि अल्फाज के छोटे छोटे हिस्से महसूस हो रहे हैं जो हमने सीखने हैं ब्लू कलर के, बाकी सारे हमें पहले से आते हैं, हमने कोर्स 1 में पढ़ी हैं। ला हु, उसी के लिए या उसी का, ठीक है, ला और हु दोनों हमने पढ़े हैं। माँ जो, फी में, अस्समावात, अस्समा की जमा है आसमानों, बा और माँ जो, फी में, अल अर्द जमीन, मन कौन है? मन का दूसरा मानी क्या पढ़ा था? चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से। मन का दूसरा मानी हमने क्या पढ़ा था? मन का दूसरा मानी अगर जुमले के दरमियान में आ जाए मन, मन अगर नहीं बेटे ये मिन नहीं है, बेटे आपने कहा से होता है मिन, ये है मन। सलमा बता रही है इसका मानी होता है जो, अगर मन जुमले के दरमियान में है तो उसका मानी होगा जो, जिससे, ठीक है। ज़ल्लज़ी, वो जो, दा नया है हमारे लिए। यशफ़अउ, सिफारिश करे, रिंदा, पास, हु उसके, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात हो रही है। इल्ला, सिवाय या मगर, हमने ये भी पढ़ा है। बी इज़्नी, ही, 3 अल्फाज हैं, बी से या साथ, इज़्नी इजाजत के, ही उसके, ही हु, ये बार बार आ रहे हैं ना, देखें आप, बार बार कुरान में ये अल्फाज आ रहे हैं जो हमने हु हम का कुम वाले टेबल में पढ़े थे, का ये कुम ना, राइट। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। आयतुल कुर्सी का अगला हिस्सा हमारे सामने है, हम देखते हैं इसमें से कितने लफ्ज हमें आते हैं। माशाअल्लाह, सिर्फ 3 अल्फाज हमें सीखने हैं, नए हैं, बाकी सब हमने कोर्स 1 में पढ़े हैं। अब अगर यहाँ पर आप में से किसी को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही हो, कोई मानी याद ना आ रहे हो, तो उसकी वजह ये हो सकती है कि अभी शायद आपने पूरी तरह रिवाइज नहीं किया। साथ साथ क्योंकि कोई भी लेसन आप पढ़ें, आप उसको रिवाइज करते हैं, जैसे स्कूल का काम होता है, राइट। कुछ भी सीखने के लिए चीज़ों को पढ़ना होता है, टाइम देना होता है, लेकिन जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे लफ्ज कोर्स 1 में मौजूद है। और आप में से वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स, वो सिस्टर्स और ब्रदर्स जो तवज्जो से सुनते भी रहे सारी क्लासेस को और साथ साथ रिवाइज करते रहे, उनको यकीनन हर चीज का मानी आ रहा हो, ठीक है। या अलमु, वो जानता है, हमने ये पढ़ा था, ये टेबल था मुजारे का ना, या अलमु, या अलमुना, माशाअल्लाह। मा जो, बैना ऐदीहिम, उनके सामने है, ठीक है। ये अलग अलग मानी है, बैना का मानी होता है दरमियान के मानों में आता है, लेकिन यहाँ इसके हिसाब से आ रहा है जब इसको मिलाकर पढ़ेंगे। वा और मा जो, खल्फा, खल्फा का मतलब है पीछे, बैक पर, पीछे, खल्फहुम, उनके पीछे, या माजी में जो भी उसका मानी हो सकता है, खल्फा का मानी है पीछे। वा और ला नहीं, युहीतूना, वो अहाता करते हैं, अहाता करना होता है घेर लेना, घेर लेना किसी चीज को, ठीक है, और वो अहाता नहीं करते हैं क्योंकि ला का लफ्ज़ है यहाँ। विशैइन, किसी चीज का, मिन इल्मिही, उसके इल्म से, इल्ला, मगर, बिमा शाअ, जितना वो चाहे। सुभान अल्लाह। तो क्या कहा जा रहा है? वो यानी अल्लाह जानता है जो कुछ उन लोगों के सामने है और जो उनके पीछे है, ठीक है। अभी हम इसकी तफसीर में नहीं जा रहे, डिटेल नहीं समझेंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ लफ्जों की पहचान कर रहे हैं, ठीक है। आगे आगे इंशाल्लाह हम उनको भी सीखेंगे। और नहीं वो, यानी वो लोग घेर सकते, अहाता कर सकते किसी चीज का,
या अपनी अथॉरिटी में ले सकते हैं किसी चीज को, ठीक है, जो सिवाय उसके कि जो चीज उसकी मर्जी से हो, ठीक है। यानी अल्लाह के इल्म में तो हर चीज है ना, लेकिन कोई भी किसी चीज का अहाता नहीं कर सकता, किसी चीज को कवर नहीं कर सकता, घेर नहीं सकता सिवाय उसके जो अल्लाह चाहे। सुभान अल्लाह, ठीक है। ओके, आयतुल कुर्सी का तर्जुमा बहुत ही, अगर हम इसको समझ कर पढ़े ना डिस्क्रिप्शन में जाकर, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। इंशाल्लाह अगले कोर्सेज में हम इनको अगर ज्वाइन करते हैं तो हम समझेंगे इसकी डिटेल को। वसीअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। आयतुल कुर्सी यहाँ मुकम्मल हो रही है माशाल्लाह। यहाँ भी सिर्फ 4 लफ्ज़ हैं जो हमें सीखने हैं। वसीअ, समा लिया, कुर्सी ये नया लफ्ज़ है, लेकिन ये उर्दू में हम कुर्सी को कुर्सी कहते हैं, चेयर, तो ये भी हमें पहले से आता है लेकिन हमने कोर्स में नहीं पढ़ा, ठीक है। यऊदु, थकाना, टायर्डनेस, कहते हैं थक गए हैं, राइट, ये वो लफ्ज़ है। हिफ्ज़ुहुमा, उन दोनों की हिफाजत। ये अल्फाज बहुत आसान है, उर्दू से मिलते जुलते हैं, लेकिन कोर्स 1 में नहीं पढ़े, बाकी सारे अल्फाज हम पढ़ चुके हैं। तो मानी क्या हुआ, समा लिया उसकी, यानी अल्लाह की कुर्सी ने आसमानों को और जमीन को, और उन दोनों की हिफाजत करना उसको थकाता नहीं। सुभान अल्लाह, और वो बुलंद मर्तबा अजमत वाला है। सुभान अल्लाह, ठीक है। तो आप जब आप, अभी तो हम लफ्जों के हिसाब से पढ़ रहे थे, जब आप बा मुहावरा इसके तर्जुमा आप करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इतनी खूबसूरत बात इसमें की गई है इस पूरी आयत मुबारका में। तभी इस आयत की इस फजीलत इतनी है कि इसको आयतुल कुर्सी के नाम से हम बहुत दफा तिलावत करते हैं अपनी हिफाजत के लिए भी। दुआए कुनूत आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, इजाफी दुआ है, लेकिन हम इसको यहाँ जरूर समझेंगे क्योंकि उसके बेशतर हिस्से हमने कोर्स में सीखे हैं। अच्छा, एक वजह ये भी आप इसको ज़हन में रखें कि क्योंकि कोर्स मुकम्मल कर रहे हैं तो हमें यहाँ अल्लाह के साथ हम बहुत जज्बाती तौर पे अटैच हैं, तो हमने इसको दुआ समझ के मांगना है, ठीक है। तो सब अपने अपने हाथ उठा लें और दुआ समझकर इसको पढ़ते हैं और फिर हम देखेंगे कि कौन से अल्फाज हमें आते हैं। आई होप कि आप सब इस वक्त दुआ की मोड में हैं, दुआ के अंदाज में बैठे हुए हैं सब। चले जी। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका। ए अल्लाह, बेशक हम मदद मांगते हैं तुझसे और हम बख्शिश चाहते हैं तुझसे। व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका, और हम ईमान लाते हैं तुझ पर और हम भरोसा करते हैं तुझ पर। व नुस्नी अलैकल खैर, और हम तारीफ करते हैं तेरी बहुत अच्छी। व नशकुरुका वला नकफुरुका, और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते। व नखलाउ व नतरुकु मन यफजुरुक, और हम अलहदगी इख्तियार करते हैं और हम छोड़ते हैं उनको जो तेरे नाफरमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत मानी है इसका। हमने क्या पहले जाना है इस बात को कभी? अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। वलका नुसल्ली व नस्जुदु, और तेरे ही लिए हम नमाज पढ़ते हैं और तुझे सजदा करते हैं। व इलैका नसआ व नहफिदु व नरजू रहमतका, और तेरी ही तरफ हम कोशिश करते हैं और हम खिदमत में पेश होते हैं और तेरी रहमत के हम उम्मीदवार हैं। व नक्शा अज़ाबका, और हम डरते हैं तेरे अजाब से। इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ारि मुल्हिक, बेशक तेरा अजाब काफिरों को पहुंचने वाला है। अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह के अजाब से महफूज रखे। तो जरा महसूस करें आयतुल, ये जो दुआए कुनूत है हम ईशा की नमाज में पढ़ते हैं इसको, राइट, और आज हम इसको समझ रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसको अगर समझ कर पढ़ेंगे तो कितनी मुकम्मल दुआ है ये, कितनी फायदेमंद है हमारे लिए ये सारी दुआएं, किस कदर। सुभान अल्लाह। अब जरा देखें कि बावजूद इसके कि ये दुआ हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं थी, ये सारे लफ्ज हमें पहले से आ गए, क्योंकि मैं आपको साथ साथ बताती रही हूँ कि कितने अल्फाज हैं जो कुरान में रिपीट हो रहे हैं बार 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 बार। सुभान अल्लाह। अब ये जो सारे रेड लाइन से जो अंडरलाइन किया हुआ है जिनको, ये सारे हमने पढ़े हुए हैं और हमारे लिए नए लफ्ज हैं ब्लू वाले, यानी नस्तगफिरु, हम बख्शिश चाहते हैं, ये नया है। इस्तगफार को हमने पढ़ा लेकिन नस्तगफिरु इसको हमने नहीं पढ़ा। नुमिनु, हम ईमान लाते हैं, ये हमने अभी कोर्स 1 में नहीं पढ़ा। नतवक्कलु, हम भरोसा करते हैं यानी ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। नुस्नी, हम तारीफ करते हैं, ये भी नया लफ्ज है। नशकुरु, हम शुक्र करते हैं। नकफुरु, हम
इसका मतलब है नाशुक्री करते हैं, लेकिन ला के साथ पढ़ेंगे तो मतलब होता है हम नाशुक्री नहीं करते हैं, ठीक है। नफलाऊ, हम अलहदा होते हैं, अलग होते हैं या अलहदगी इख्तियार करते हैं। नत रुकू, हम छोड़ते हैं, तर्क करते हैं। यफजुरु, वो जो नाफरमान है, ठीक है। तो ये वो अल्फाज मैंने रिपीट किए हैं जो हमारे लिए नए हैं, सिर्फ इतने से, थोड़े से। इनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो उर्दू में मिलते जुलते लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। तो अब हमारे लिए सिर्फ थोड़ी सी देर इन चंद अल्फाज को अगर आप दोहरा लेंगे क्लास के एंड में, क्लास खत्म होने के बाद, तो आज इंशाल्लाह ईशा की नमाज में जब आप दुआए कुनूत पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि इसकी इतनी वैल्यू थी जिसको आप कब से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम समझ कर पढ़ेंगे, ठीक है। अब दुआए कुनूत का आखिरी हिस्सा, इसमें से भी जो ब्लू वर्ड्स हैं वो हमारे लिए नए हैं, जैसे नुसल्ली, हम नमाज पढ़ते हैं। अब ये देखिए इन लफ्जों के शुरू में नून का इस्तेमाल है। फिल मादी में शुरू में नून का इस्तेमाल हो रहा था किसी सीगे में या मुदारे में, जरा चैट बॉक्स में बताइए। फिल मुदारे का एक लफ्ज है या फिल मादी का जिसके शुरू में नून का इस्तेमाल था? याद करें जरा जल्दी से। उसके फॉर्मूला के शुरू में इशारा उसका ये था। मुदारे में सदफ जबीन बता रही है माशाल्लाह। तो यहाँ काफी जगहों पर नून का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे नुसल्ली, हम इबादत करते हैं, ठीक है। नसजुदु, हम सजदा करते हैं, राइट। इसी तरह नसआ, हम कोशिश करते हैं, तो हम के मानों को ये बता रहे हैं, राइट। नफिदु, हम खिदमत में पेश होते हैं, तो इसका इशारा मुदारी के हिसाब से ये इशारा बनता है ना। नरजू, हम उम्मीद करते हैं या उम्मीदवार हैं। रहमत का, रहमत, रहमत का तेरी, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, का लफ्ज़ हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह नक्शा, हम डरते हैं। कुफार, काफिरों, काफिर की जमा है ये। मुल्हिक, पहुंचने वाला, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको समझ लिया। तो यकीनन आपने बहुत दिल से इस दुआ को मांगा भी होगा समझने के साथ। मैं जरूर चाहूंगी कि हैंड रेज करें आप में से कौन इसका तर्जुमा एक बार पढ़ेंगे, सिर्फ तर्जुमा पढ़ना है। हुरैन शाह माशाल्लाह एक्टिवली उन्होंने हैंड रेज किया है। हुरैन माइक ऑन करें, सिर्फ आप उसको तर्जुमा पढ़ें और हम सब दुआ की तरह से इसको सुनें जल्दी से। जी बेटे। ऐ अल्लाह, हम तुझसे मदद मांगते हैं और तुझसे बख्शिश चाहते हैं और तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पर भरोसा करते हैं और तेरी अच्छी तारीफ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते और तेरे नाफरमान से अलहदगी इख्तियार करते हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तेरे ही लिए नमाज पढ़ते हैं और तुझे सजदे करते हैं और तेरी तरफ कोशिश करते हैं और हम हाजिरी देते हैं और तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे अजाब से डरते हैं। बेशक तेरा अजाब काफिरों को पहुंचने वाला है। बेशक बेशक। तो ये दुआए कुनूत हमने मांग ली। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला हमारे इन तमाम अल्फाज को एक्चुअली जो हमने दिल से सुने, दिल से दोहराए अपने दिल में, अल्लाह ताला इनको कबूल फरमाए, हम सब से राजी हो इंशाअल्लाह। ओके, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास, राइट। तो कुरान के दूसरे सफ़ात, अभी तो मैंने आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया ना, डेमो था ये, ताकि आपको पता चले कि कैसे पता चलेगा कुरान के 50% लफ्ज़ आपने सीखे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं आपको सारे सफ़ात अभी बताऊं, बहुत टाइम लगेगा। अब ये आपका काम है, आप कुरान के बाकी सफ़ात पर भी इसी तरह से ढूंढे अल्फाज। रोज का आप टाइम रखें कि मुझे रोज पर एक जगह से शुरू करते जाएं और ढूंढते जाएं। इवन आप एक पारा या कुरान पाक रख सकते हैं जिनको आप केयरफुली हाईलाइट करते जाएं कि ये अल्फाज मुझे समझ में आ गए हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो हमें ये बात साबित होगी और इस तरह से वो अल्फाज हमें याद भी रहेंगे, राइट। ओके जी, राइट। हम अभी बात करें, आप इन दोनों कोर्सेज में तकरीबन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके फाइन। तो याद रखना है कि ये कोर्सेज हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। हमने पहले जो कोर्स किया आपको पता चल गया होगा, हमने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने भी, जब मैंने पहली बार ये कोर्स किया तो मैंने नहीं सोचा था कि इतने कम टाइम में हम कुरान को के आधे से ज्यादा लोग सीख भी सकते हैं। यकीन ही नहीं आता ना इंसान को, लेकिन जब ये कोर्स किया तो पता चला। अब आपको भी यकीन आ गया होगा, जब आप कुरान से लफ्ज़ सुनेंगे तो आपको यकीन आएगा। इसी तरह से आपने जो है 500 अल्फाज जो है तकरीबन हमने इसमें
मतलब हम इसी तरह से जो जुमले हैं ना, अरबी के जुमले, वो भी हम सीख रहे हैं। कितने जुमले हम लोग रोज बोलते थे ग्रामर के साथ, हंड्रेड्स में हमने सीखे हैं। इसी तरह अगले कोर्सेज को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हम भी सीखेंगे, ठीक है, राइट। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम चीजों को समझेंगे हमारे लिए इल्म के दरवाजे खुलते जाएंगे अल्लाह की तरफ, अल्लाह ताला हमसे राजी होंगे। और हम सब कामयाब होना चाहते हैं, हम चाहते हैं हम हर चीज में कामयाब हों, हम कामयाब होंगे, राइट। तो मत भूले कि अल्लाह ने हमें सिलेक्ट किया, इंतखाब किया। ऐसा होता है ना, जैसे किसी भी जगह हम जाएं, काफी ज्यादा लोग हों, उनमें से कुछ लोग सिलेक्ट हों, कुछ स्पेशल होते हैं, तो अपने आप को स्पेशल समझें कि अल्लाह ने इतने लोगों में से सिलेक्ट किया है कि मेरा ये बंदा आई मेरी किताब समझे। इतनी मोहब्बत है अल्लाह की, इस बात को इग्नोर मत करें। लिहाजा हमें इंशाल्लाह कुरान को सीखना है, सीखते रहना है। अल्लाह से दुआ करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। पॉकेट बुक का इस्तेमाल कभी नहीं छोड़ना इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ए पार्ट हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम लेते हैं ब्रेक और उसके बाद हम जाते हैं ग्रामर की तरफ। तो मैं चाहूंगी कि आप सब पानी पी लें, फ्रेश हो जाएं और लेसन की तरफ वापस आएं, क्योंकि अगला हिस्सा भी बहुत ही जरूरी है। हम पूरी तवज्जो से इसमें मौजूद रहें। और आप में से कोई एक अभी सवाल कर सकता है, अगर किसी का कोई कोर्स से रेलिवेंट क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं जी। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन तो हम देख लेते हैं। हानिया ने हैंड रेज किया हुआ है। हानिया, आप अपना माइक ऑन कर लो बेटे। यस मैम। जी हानिया, यू कैन टर्न ऑन योर माइक। माइक ऑन है, यस। हानिया मुझे बताइए, आप क्या कुछ पूछना चाह रही हैं? यस मैम। मैम पूछिए। हमारा जो रिवीजन क्लासेस होंगी वो किस दिन होंगी? बेटे वो भी इसी तरह ऑनलाइन होंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक आई बिलीव कि ट्यूसडे को ही होगी, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन का मैसेज इंशाल्लाह आपको आज ही सेंड कर दिया जाएगा। रिवीजन की कंफर्मेशन का मैसेज आपको आज ही मिल जाएगा और टाइम भी पता चल जाएगा। इसी जगह इसी लिंक पर आपने ज्वाइन करना होगा। उससे आपको बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि आपने, अगर कोई भी आपका कोई हिस्सा ऐसा है जिसमें थोड़ी मे बी कोई मेन हिस्सा है जिसमें कोई कंफ्यूजन रह गई है, कुछ समझ नहीं आया, अगर आप ग्रामर में अलग कमरे में बैठ के पूरी क्लास को ज्वाइन करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएंगी। ठीक है, आपने उसको जरूर ज्वाइन करना है, इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। बाकी लोगों के सवालात एंड में लिए जाएंगे। अभी हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ, जो कि है लेसन का बी पार्ट। ओके, एंड हम देखते हैं कि बी पार्ट में एक्चुअली क्या है। ग्रामर, ग्रामर का बी पार्ट। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे पहले 19 चैप्टर्स में इसी तरह ए पार्ट को पढ़ा, फिर बी पार्ट को पढ़ा। तो कितना अच्छा लग रहा है हमें, और थोड़ा जज्बाती भी है कि आज हम इस कोर्स के साथ आखिरी चैप्टर का आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद ये वाली क्लासेस इस तरह से नहीं होंगी। उसके बाद अगर कोई दोबारा से क्लास को ज्वाइन करेगा, तो इसे समझे कि मुझे कुरान को मजीद अंडरस्टैंड करना है, इस कोर्स को और अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, कुछ कमी है, वो दोबारा ज्वाइन कर सकता है। लेकिन ये क्लासेस, ये कोर्स दोबारा नहीं होगा। तो आप इस टाइम को बहुत गनीमत समझें। और देखते हैं आज के लेसन में कुछ शॉर्ट टेबल्स बताए जा रहे हैं वर्ब्स के। वर्ब्स क्या होते हैं? फेल। हमने पढ़े थे ना अल्फाज की 3 किस्में, इस्म, फेल और हर्फ। तो जो फेल है उनको इंग्लिश में वर्ब्स कहते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा ग्रामर में क्या होता है, जरा चैट बॉक्स में बताएं। ग्रामर में हमारा पहला काम क्या होता है? स्माइल करना। माशाल्लाह इर्सा बता रही है हमें। सबसे पहले मुस्कुराना है। मुस्कुराएं यानी खुशी से, खुशी का इजहार करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम खुश हैं, या अल्लाह आपने हमें ये तौफीक दी है कि हम यहाँ तक पहुंचे और आज हम कुछ और खास, कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं।